So, Assalamu alaikum. So, this is chapter 3, process management. In this chapter, we are going to study the processes and their interactions and how the CPU handles multiple processes. Important terminologies है कुछ जो आगे बढ़ने से पहले, जैसे टास्क क्या होता है. When a program is requested for execution, it is called a task before pressing enter key. Job क्या होता है when the OS checks the validity of the task by searching it in internal page table. If present, then it is said to be valid job for further processing. जैसे मैंने आपको बताया था, वो एक टेबल होता है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो पड़े होते हैं और उनके आगे एक एसोसिएटेड एक नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है. ठीक है ना. तो वो जो टेबल मेंटेन होता है वो यहाँ चेक होगा टेबल के. उस टेबल में अगर ये टास्क पड़ा हुआ है तो उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजा जाता है. ठीक है. उसके बाद प्रोसेस क्या होता है. The job is then loaded into the computer memory. After memory allocation, the program is set into execution. So, for example, when we write the following on the console, C:/dir, तो the task has been given to the OS. अभी हमने एंटर प्रेस नहीं किया. ठीक है. अब हम एंटर प्रेस कर दिया तो अब उसके बाद क्या होगा. OS checks its validity by searching it in internal page table. ठीक है. If found, then it is valid job. When it become a job, OS must load it into the memory for execution. So now this program under execution along with its environment is called process. ठीक हो गया है. So इस तरह ये चलता है. उसके बाद आगे चलते हैं. आगे आ जाए प्रोसेस कॉन्सेप्ट पे. A process is a program in execution. It is a unit of work within the system program. It is a passive entity, while a process is an active entity. So ये चीज़ें हम पहले भी स्लाइड 2 में या स्लाइड 1 में शायद पढ़ चुके हैं हम, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हो. One program can be several processes. Consider multiple users executing the same program. Process needs resources to accomplish its task. सीपीयू चाहिए होता है प्रोसेस को, मेमोरी चाहिए होती है, इनपुट आउटपुट फाइल्स चाहिए होती है और इनिशियलाइजेशन डाटा. ये एग्जैक्टली जो है ना, अगर आपने पिछले लेक्चर्स लिए हो, ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम चीजें लिखी हुई हैं. प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्स reclaim of any reusable resources. Single threaded process has one program counter specifying the location of the next instructions to be executed. Process executes instructions sequentially one at a time until its completion. तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस यानी कि उसके अंदर एक ही थ्रेड होती है और वो एक थ्रेड जो है वो रिसोर्स लेती है, वो मेमोरी लेती है, वो सीपीयू लेती है. जबकि मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, मैंने आपको सारा समझाया हुआ है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर लिए होंगे आप सबको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ. मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में 3 थ्रेड्स होती हैं. अगर वो आपको डायग्राम याद हो जो मैंने आपको शो की थी कि 3 थ्रेड्स होती हैं और वो हर थ्रेड को अलग सीपीयू मिलता है थोड़ा सा, इसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा. हर थ्रेड को अलग रिसोर्स मिलेंगे और तीनों एट अ टाइम सिमिल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती है. तो ये फ़र्क होता है. आई होप से समझ आ गई हो. उसके बाद आगे चलते हैं. Typical system has many processes, some of users, some of operating system that are running concurrently, one or more CPUs. Concurrently by multiplexing the CPUs among the processes thread. Concurrency by multiplexing the CPUs among the process thread. Activities क्या होती हैं? The OS is responsible for the following activities in connection with process management. OS क्या करेगा? Create, delete both user and system processes. Suspend कर सकता है processes को, resume कर सकता है, और provide mechanism for process synchronization, provide mechanism for process communication और deadlock handling. जब ये slide 1 में मेरा ख्याल लिखा हुआ था ये सारा.
तो ये सारा एक्चुअली आपको ज़रा याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि आगे आगे जाके आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क देखना है। प्रोसेस मेमोरी। अ प्रोसेस हैज मल्टीपल पार्ट्स। ओके, तो यहाँ जो है ना, अपना ज़रा ध्यान करें। प्रोसेस हैज मल्टीपल पार्ट्स। द प्रोग्राम कोड इज कॉल्ड टेक्स्ट सेक्शन। ठीक हो गया है। करंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेसर रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर। स्टैक होता है एक, ठीक है, ये पहला है और ये है हमारा सेकंड। स्टैक कंटेनिंग टेम्परेरी डाटा, फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स। अच्छा, डाटा सेक्शन कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल्स। डाटा सेक्शंस के अंदर क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स। हीप कंटेन मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। सो स्टैक, सबसे पहले स्टैक आता है जिसके अंदर हमारा टेम्परेरी डाटा है, फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, एड्रेस है, लोकल वेरिएबल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। हीप क्या है? जो मेमोरी डायनामिकली लोड हुई है, जैसे कि अपना कोई भी प्रोग्राम जो डायनामिकली लोड हुआ है, ठीक है। उसके बाद डाटा आता है, फिर आता है टेक्स्ट, यहाँ से 0 से मैक्स, ठीक है ना, डाउनवर्ड टू प्रोसेस स्टेट। एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट चेंजेस द स्टेट। रेडी स्टेट या रनिंग स्टेट, दो स्टेट्स होती हैं। रेडी कौन सी होती है कि प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। रनिंग क्या होती है कि इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। सो रेडी स्टेट को शेड्यूल किया, रनिंग पे आ गई, रनिंग से इंटरप्ट आया तो वो वापस रेडी पे चलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह यह साइकिल काम करता है। ओके, सो यहाँ जो है ना थोड़ा ध्यान करना है। एग्जांपल है, दो प्रोसेस है हमारे पास, एक P1 है और एक P2 है। P1 है और P2 है। यहाँ उसने बात की है बर्स्ट टाइम की। P1 का बर्स्ट टाइम कहता है 40 सेकंड है और P2 का भी बर्स्ट टाइम 40 सेकंड है। और इनका स्टार्ट टाइम, जिसको अराइवल टाइम कहते हैं, वो 0 सेकंड है, 0 है, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट होंगे। CPU टाइम स्लाइस जो है वो 10 सेकंड है, ठीक है। अब आगे जाके इसको मजीद देखते हैं। ये वही ऊपर वाला टेबल सेम टू सेम कॉपी किया यहाँ, ठीक है। अब इसका हम टाइम इंस्टेंट निकालेंगे। जब टाइम इंस्टेंट जो है हमारा 0 होगा तो P1 जो है वो रनिंग है, P2 जो है वो रेडी है, ठीक है। क्योंकि P1 आया, फिर P2 आया, P1 रनिंग स्टेट में है, P2 रेडी स्टेट में है। टाइम इंस्टेंट 10, 20, 30, 40। अब ये जो है ना 10 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि CPU का टाइम स्लाइस जो है 10 सेकंड है, ठीक हो गया है। तो इसी तरह ये रेडी है, ये रनिंग है, ये रेडी है, ये रनिंग है, ये रनिंग है, ये रेडी है। अच्छा, यहाँ ये खाली क्यों है? इसकी वजह ये है कि यहाँ आप देखें, ये रनिंग 1, ये रनिंग 2, ये रनिंग 3, ये रनिंग 4। सो 1, 2, 3, 4 और 4 10s आर 40। तो इसने अपना 40 का जो इंटरवल है वो यहाँ कंप्लीट कर दिया था, तो लिहाजा ये प्रोसेस यहाँ बस्ट हो गया, ठीक है। जबकि ये रेडी था तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक ही चला है प्रोसेस P2 70 टाइम इंस्टेंट तक। सो इस तरह ये टेबल हमने बनाया है, ठीक है ना। तो ये क्लास एक्सरसाइज एक दी हुई है इसने, यही एक्सरसाइज है शायद, यहाँ सोल्यूशन भी दिया हुआ है इसका। खैर, ये देखें, अब यहाँ टाइम स्लाइस 10 दिया हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40। जब तक वो प्रोसेस चलते रहेंगे। दो प्रोसेस दिए हैं, एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम उसने क्या दिया है 30, और दूसरे प्रोसेस का भी बर्स्ट टाइम है 50। और दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे आए हैं, लेकिन पहला प्रोसेस पहले रनिंग में होगा,
P1 जो है हमने रन किया, P2 हमारा अभी रेडी स्टेट पे है, फिर टाइम इंस्टेंट 10 पे P1 रेडी हो गया है, P2 रन हो गया है। इसी तरह जब टाइम इंस्टेंट 40 हो गया तो P1 जो है वो अपने 30 का जो सेकंड है वो पूरे कर चुका है, 1 और ये 2 है और ये 3 है, तो ये 30 सेकंड जो है वो अपने P1 पूरे कर चुका है। तो यहाँ इसलिए इसके बाद सारा P1 खाली है, ठीक है। जबकि P2 हमारा रनिंग में ही जाएगा, 3, 4 एंड 5। ठीक हो गया। प्रोसेस स्टेट मॉडिफाइड एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट चेंजेस स्टेट। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट होती है प्रोसेस के अंदर? एक न्यू, रेडी रनिंग तो हमने देख लिया, और न्यू की भी होती है, टर्मिनेटेड होती है। न्यू क्या करती है कि द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। रेडी है, प्रोसेस वेट करता है, रनिंग में वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, टर्मिनेटेड में कि वो खत्म होगी इसकी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो प्रोसेस जो है यहाँ क्रिएट हुआ और रेडी में आया, रेडी से प्रोसेस रनिंग में गया, रनिंग से प्रोसेस में अगर कोई इंटरप्ट आई तो वापस रेडी में चला गया, रेडी से वो फिर रनिंग में आ गया, रनिंग से वो टर्मिनेट हो गया। अच्छा, प्रोसेस उसके बाद ये अपना एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट चेंजेस स्टेट। ठीक है, ये सारा उसने वही दोबारा बताया हुआ है यार। अच्छा, यहाँ कुछ अगर देखने वाला है तो हाँ, यहाँ ज़रा थोड़ा सा देखने वाली चीज़ ये है, P1 does an IO for 10 seconds at 20, ये कंडीशन उसने दी है एक, और एक कंडीशन उसने ये दी है, P2 does an IO for 20 seconds at 40। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए आगे हम इसका टेबल बनाते हैं। तो दो प्रोसेसेस है, उसी तरह उनके बर्स्ट टाइम दिए हुए हैं 40 सेकंड्स, सीपीयू टाइम स्लाइस हमारा 10 सेकंड, स्टार्ट दोनों जीरो पे ही होंगे। सो यहाँ जीरो पे स्टार्ट हुआ P1 जो है, और P2 रेडी है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ दोबारा दिखा दूँ कि P1 जो है वो एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 10 सेकंड के लिए, और कब करेगा? जब हमारा टाइम इंस्टेंट 20 होगा। तो ये जो 20 है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा टाइम है, टाइम इंस्टेंट। ठीक है, इसी तरह ये 40 जो है ये भी टाइम इंस्टेंट है, ये P2 का है और ये P1 का है। तो P1 जो है वो इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहा है 10 सेकंड के लिए, कब? 20 पे। तो यहाँ अगर आप देखें 20 जब हमारा टाइम हुआ तो P1 जो है वो ब्लॉक हो गया है फॉर इनपुट आउटपुट, क्योंकि इसने यहाँ इनपुट आउटपुट परफॉर्म करनी है। ठीक है ना, आपको लोगों को समझ आ गई होगी। इसी तरह जो P2 प्रोसेस है उसने कहाँ पे करना था? 20 सेकंड के लिए करना था और 40 पे करना है। तो यहाँ 40 पे आके देखें P2 ब्लॉक हुआ, और 2 दफ़ा ब्लॉक हुआ। 2 दफ़ा क्यों ब्लॉक हुआ? क्योंकि 40 से 50 ब्लॉक हुआ और 50 से 60 20 सेकंड्स के लिए ब्लॉक हुआ। ठीक है, तो ये कंडीशन उसने एक दी थी। और जब एक प्रोसेस ब्लॉक होता है तो अगला रनिंग में आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको शुरू से एक दफ़ा देखें तो P1 रनिंग में था, P2 रेडी, फिर P1 रेडी, P2 रनिंग। अब P1 टाइम इंस्टेंट चूंकि 20 हो गया है, P1 ब्लॉक हो गया है, तो वो P2 दोबारा वही रन हो गया, दोबारा P2 पहले भी रन हुआ, दोबारा भी रन हो गया। ठीक है, अब वो रनिंग में था, ठीक है ना, तो टाइम इंस्टेंट 30 पे P1 रनिंग में आ गया और P2 रेडी हो गया। अब 40 आ गया, तो 40 पे हमें याद आ गया, हाय हमने तो P2 को आइडल कर देना है, वो तो ब्लॉक हो जाएगा। तो P2 ब्लॉक हो गया, तो ये रनिंग में आ गया। इसी तरह जब 50 आया तो P2 तो फिर ब्लॉक हो गया, क्योंकि 20 सेकंड के लिए ब्लॉक होना था। ठीक है ना, और ये दोबारा 3 दफ़ा रन हो चुका है। ठीक है, 3 4, ठीक है, 40 सेकंड्स के लिए ही इसने रन होना था, और इसका भी 1 2 3 4, यहाँ 40 सेकंड्स के लिए रन हुआ। ये पहले ही एग्जिट हो गया और ये बाद में एग्जिट हुआ। सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये मैं नहीं समझाऊंगा आपको, ये आपने खुद करनी है, क्योंकि अभी मैं आपको समझा दिया है। तो थोड़ा सा इसको और भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा कुछ उसी तरह गिवन है, वही सेम डाटा गिवन है यार, डाटा ही नहीं चेंज करते यार ये।
डाटा वही गिवन है, बस उसने कंडीशन चेंज की है कि P1 जो है वो ब्लॉक होगा कितने सेकंड के लिए ब्लॉक होगा, 10 2 आर 20। तो ये जो है ना, इस ये स्लाइड वाले ने बगैर सी लगाई है आपके साथ, यहाँ 20 आता है क्योंकि उसने वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए 10 cos 2 किया हुआ है। तो ये भी 20 है, ठीक है। तो P1 और P2 जो है वो 20 सेकंड के लिए ब्लॉक होंगे, लेकिन दो दफ़ा ब्लॉक हो रहे हैं, 20 पे और 50 पे, और ये ब्लॉक होगा 40 और 60 पे। सो मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये देखो 20 पे ब्लॉक हुआ, ठीक है, और 50 पे ब्लॉक हुआ, ठीक है। और कितने सेकंड्स के लिए ब्लॉक करना था इसने, 20 सेकंड के लिए। तो 20 से 30 ब्लॉक हुआ, यहाँ हमारा 10 सेकंड्स हो गए, ठीक है। और 50 से 60 ब्लॉक हुआ, यहाँ हमारे 10 सेकंड हो गए, तो टोटल में 20 सेकंड उसने अपने पूरे कर दिए। इसी तरह ये 40 पे ब्लॉक हुआ और ये 60 पे ब्लॉक हुआ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं कि अगर वो 20 पे ब्लॉक हुआ है ना, तो वो यहाँ ही 20 सेकंड चला देते हैं, और यहाँ फिर जब दोबारा ब्लॉक करना हो तो वो यहाँ फिर दोबारा 20 सेकंड चला देते हैं। तो ये टोटल फिर वो 40 सेकंड चल जाता है, जो कि गलत है। तो आपने यहाँ 10 सेकंड यहाँ चला देना, 10 सेकंड यहाँ चला देना, ये बात आपने दिमाग में रखनी है टू मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, ठीक है। चलो भाई, अब ये एग्जांपल एक और है जिसका डाटा चेंज है, ये आपने खुद समझनी है एग्जांपल, क्योंकि समझ आपको मैंने समझा दी है। सो प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड पीसीबी, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो अगले पार्ट में आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।